Hello students, a very good morning to all. Today we are going to see in book is in semesters 2 where we are going to start our first chapter about a little girl. The name of the girl is Sadako. Okay, the chapter's name is The Story of Little Sadako. Peace. Okay, in this story we are going to see about a little girl and about the world war which happened in 1945 between Japan and America. So let's read the story and get more about this girl and what she want to convey the message to the people and also all the around the world. Reading this story of little Japanese girl named Sadako. An atom bomb was dropped on her city Hiroshima in Japan during World War II. Read on what happened to Sadako. Okay, you can see here the peak of this little girl Sadako's sky. In 1945, Japan and the United States of America were fighting against each other in war. On 6 August 1945, the United States of America dropped the bomb on the city of Hiroshima in Japan. Okay, when in 1945 the World War II was going on. That time this World War II between happening the Japan and United States of America, and where this United States of America dropped the bomb on Japan. And so in Japan, when they dropped the bomb, there was a small city, Hiroshima. So by this bomb, the many people were got affected and many were killed, and many of them children also were affected and killed. In this little girl, Sadako Seskai, this bomb was dropped away from her house, nearly 3 kilometers away. So let's read more about this. It was a huge bomb that killed thousands of people. Little Sadako Seskai was only 2 years old when the bomb was dropped. Okay, the age of this girl was only 2 years when the bomb was dropped in Japan. The bomb was dropped 3 kilometers away from home. Many her neighbors were killed by the bomb. Luckily, little Sadako survived. When the bomb was dropped in this village from her home, just 3 kilometers away, that time what happened, many people were killed, means thousands of people, and also her neighbor also got killed. But luckily, okay, किस्मत से ये लड़की क्या होती है, जब ये बॉम्ब फेंका जाता है जापान में 1945 में, ओके, ऑन 6 अगस्त 1945 में, तो क्या होता है उस समय जो ये लड़की रहती है वो लकीली बच जाती है, जो कि वो बॉम्ब रहता है उसके घर से 3 किलोमीटर दूर फेंका जाता है. उसमें बहुत सारे इसके परिवार के लोग और साथ ही साथ उसके जो नेबर्स है, आसपास के पड़ोसी और बहुत सारे बच्चे अपना जीवन खो देते हैं. बट इन 1954 when Sadako was 11 years old, little bumps developed on her neck and behind her ears. ओके, जब क्या होता है इन 1945 जब ये लड़की होती है Sadako, जब ये 11 साल की हो जाती है, तो क्या होता है जो बॉम्ब उस समय फेंका जाता है जब 1945 में, ही मीन्स 1945 में जो बॉम्ब ड्रॉप किया जाता है उसी के 11 साल बाद क्या हो जाता है, लड़की के शरीर में कुछ बड़े बड़े फोड़े निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, उसके जो शरीर है या गले में सब दूर उसको इस प्रकार के बम्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. बम्स मीन्स व्हाट, अ स्वेलिंग ऑन द बॉडी. ओके, एक प्रकार की सूजन उसके शरीर में स्टार्ट हो जाती है. Purple spots began to form her legs. Doctor found that Sadako had leukemia, a terrible disease that kills people. ठीक है, जब क्या होता है अब ये धीरे धीरे इसका शरीर क्या होता है बीमारी से जकड़ने लग जाता है और इसके शरीर में पर्पल कलर के स्पॉट्स यानी दाग होना स्टार्ट हो जाते हैं. तब ये डॉक्टर को पता चलता है कि इस लड़की को कौन सी बीमारी है, लियोकेमिया यानी एक प्रकार की बीमारी होती है.
अ सीरियस विच कैन कॉज डेथ, ठीक है, डेथ, एक प्रकार की जो बीमारी है तो बहुत डेडली रहते हैं, ठीक है, ये बीमारी किसी को भी हो जाती है, उसमें वो व्यक्ति लगभग ना के बराबर जिंदा रहता है। A terrible disease that kills people. Many children who were affected by the atom bomb were also found to be suffering from ल्यूकीमिया, ठीक है, जो ल्यूकीमिया बीमारी उसमें जो दूसरे भी बच्चे थे वो भी इस बीमारी से क्या हो गए थे, पीड़ित हो गए थे। ल्यूकीमिया वॉज गिवन द नेम द ऑटम बॉम्ब डिसीज, ठीक है, ल्यूकीमिया एक प्रकार की ऐसी बीमारी रहती है जो उस बीमारी को एक बॉम्ब के द्वारा नाम दिया गया है, ठीक है, उसके एक बॉम्ब के द्वारा जो भी बीमारियां होती है उसे बॉम्ब का नाम दिया गया है। Sadako was admitted to hospital. She had to stay there for many months. Her mother said, Sadako, we Japanese believed that Karens can live up to the thousands years. And if you 4,000 origami Karens, your wish will be fulfilled. Sadako said, is that true, Mama? Her mother replied, it is true, dear. I shall bring paper for you tomorrow. Okay, here in Japanese the people believed that जो एक प्रकार के जो ये क्रेनन्स बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बिलीव करते हैं कि अगर ये जो क्रेनन्स होते हैं जो पेपर से जो कुछ भी ये आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं तो वो अगर 1000 बना देते हैं, थाउजेंड्स बना देते हैं, तो क्या हो जाता है कि जो उनकी विशेष रहती है, ठीक है, जो भी इनकी इच्छाएं रहती है वो क्या हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं। तो ये बातें इस सैडको को इसकी मम्मा बताती है और ये लड़की पूछती है क्या वास्तव में ऐसा है, तो इसका मम्मा रिप्लाई करता है कि यस इट हैपेंस। बट वॉट हैपेंड इन नेक्स्ट डे शी ब्रॉट मैनी पेपर्स टू हर एंड शी स्टार्टेड फोल्डिंग द क्रेनन्स origami. From them on, Sadako spent all her time making origami crayons. ठीक है, उस समय क्या, उसी समय से जो ये लड़की रहती है हॉस्पिटल में एडमिटेड रहती है और वो हॉस्पिटल में क्या करती है, ये इस चीज़ के ये origami crayons बनाना स्टार्ट कर देती हैं। आई विल राइट पीस ऑन योर विंग्स एंड यू विल फ्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ये लड़की जब ये इस क्रेनन्स बनाना स्टार्ट कर देती है तब क्या बोलती है कि ये सोचती है और बोलती है कि मैं जो भी इस क्रेनन्स के जो विंग्स है, पंख है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करूँगी, पीस ऑफ द वर्ल्ड करके कुछ एक मोरल थॉट लिखूँगी, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया में फैल के लोगों को एक प्रकार का पीस का या शांति का संदेश पहुँचाएगा। When she made 644 origami crayons, she became very sick and weak. She could not make any more crayons. Her friends and family said, dear Sadako, don't worry, we will make remaining crayons for you. They tried to help her by making the remaining crayons. But Sadako died in October 1955. She was only 12 years old. What happened while she was making these crayons, and she nearly made like 644 crayons, and she became very sick. ठीक है, जब ये लड़की रहती है जो 644 क्रेयन्स बना लेती है, ठीक है, तो क्या होता है, इसकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लग जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। उसी समय क्या होते हैं, उसके जो बचे हुए क्रेयन्स रहते हैं उसके पेरेंट्स और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हम क्या करेंगे कि आपके जो भी बचे हुए क्रेयन्स है उसको बनाने के लिए मदद करेंगे। दे ट्राई टू हेल्प हर बाय मेकिंग द रिमेनिंग क्रेयन्स बट सैडको डाइड इन October 1955. शी वॉज ओनली 12 years old. ठीक है, जब ये लड़की ज़्यादा बीमार हो जाती है और क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है अक्टूबर 1955 में, और उसकी जब इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, तब वो सिर्फ 12 साल की रहती है।
After her death, Sadako's schoolmates began to make paper crayons. They said, "We want to remember Sadako's forever." ओके, ये सब घटनाएं घट जाती है जब सैडको मर जाते हैं, उसके स्कूल के बच्चों को पता चलता है, तो वहाँ के बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम भी पेपर क्रेयन्स बनाएंगे। दे सेड वी वांट टू रिमेंबर सैडको फॉर एवर। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम ये बना के क्या करेंगे कि जो सैडको जो लड़की है उसको क्या करेंगे, हम हमेशा यादगार बनाना चाहते हैं, उसको हमेशा याद करेंगे। दे रोट लेटर टू अनदर जापानीज स्कूल चिल्ड्रन एंड कलेक्टेड मनी। लेट्स बिल्ड अ monument in memory of our beloved Sadako and all the children who died directly from the atomic bomb or from its effects. Let us call it Children's Peace Monument, they said. ओके, जब ये बच्चे सब ये डिसाइड कर लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो सैडको उसके नाम पे एक क्या बना है, एक यादगार मोमेंट बना है। मोमेंट्स मीन्स क्या होता है, A building or statue extra built to remember people or famous person or events। ठीक है, मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जिसमें कोई बिल्डिंग या कोई पत्थर पे या कुछ चीज़ें लिखे जाते हैं और उससे क्या होता है, जो भी व्यक्ति रहता है, जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहता है, उसको क्या करते हैं, हमेशा उसकी यादगारी करते हैं। उसी प्रकार से लोग ये बच्चे डिसाइड करते हैं, पैसा इकट्ठा करके एक मोन्यूमेंट बनाते हैं, किसके लिए, सडाको के लिए। On 5th May 1958, the Japanese Children's Day. Okay, in Japan, the Children's Day is celebrated on 5th May. Okay, a bronze statue of Sadako's Sasuke holding a wire crayon high above her head was set up in the Hiroshima Peace Memorial Park. Okay, जहाँ ये जापान में ये क्या बनते हैं, मोनूमेंट बनाते हैं एक स्कूल में। वहाँ पे क्या होता है, जो ये लड़की का एक स्टेचू बनाते हैं और उसके ऊपर कुछ वायर से बना हुआ क्रेयन्स रहता है, उसको पकड़ के रहती है। और वो एक प्रकार से उस जो सिटी ऑफ हिरोशिमा की याद में बनाते हैं और हमेशा जो मैसेज है, ठीक है, वो लोगों को बताते रहे कि ऐसा कभी और वर्ल्ड वॉर या कोई भी घटना में ऐसा नहीं होना चाहिए। This statue reminds us of all the children who died in the Hiroshima atomic bombing। ठीक है, जो ये स्टेचू बनाए गए जापान में, ये हमेशा किसको याद दिलाती रहती है, जो भी बच्चे एटॉम बॉम्ब, जो ये बॉम्ब फेंका जाता है उस समय जो भी बच्चे मर जाते हैं, उनकी क्या करते हैं, याद दिलाते रहते हैं। The following lines are carved on the black marble slab below the monument। ठीक है, यहाँ पे कुछ लाइनें दी गई है जो मैसेज कन्वे करती है लोगों के लिए। ब्लैक मार्बल, ठीक है, और स्लेब मीन्स क्या होता है, जो एक मार्बल रहता है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी लिखा रहता है, उसके बारे में दिया गया है। दिस इज आवर प्रेयर्स फॉर बिल्डिंग पीस इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो इस मार्बल्स के ऊपर लिखा गया है कि ये लोगों का, ये बच्चों का क्या है, एक विश्वास है, एक उनसे आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमेशा दुनिया में क्या, शांति बनी रहे। You can see here, this is the monument is made in Japan, in city of Hiroshima Peace Memorial Park. This line talk of hope and bright future for all the children in the world. Even today, many children from all over the world send handmade paper crayons that are placed at the foot of the statue। ठीक है, आज भी क्या होता है, ये हिरोशिमा में जो स्टेचू बनाए गए हैं, वहाँ पे बच्चे हर दुनिया के कोने कोने से क्या करते हैं, क्रेयन्स बना के यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ इस जो स्टेचू उसके फुट यानी उसके जो नीचे है उसके उस भाग में क्या करते हैं, उसको रखते हैं। Okay, here we see what happened with Sadako and what happened during the World War in 1945. Many people were killed and many children also were affected with very kind of sicknesses. So this is the chapter is about
to the world to give the peace, okay, to convey the message of the peace and stay away from the war or in future also, so that many people cannot live give up their lives and live happily life. Okay, thank you.